Searching for relevant information on healthcare? Watch experienced medical professionals talk on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेडी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट्स को लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए आवश्यक समाचार और विचारों को आपके अटेंशन में लाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं गठिया की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो नमस्कार, मैं हूं प्राजता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। Today on our arthritis awareness series, we have Dr. Santosh Shetty with us. Dr. Santosh C. Shetty is an internationally acclaimed and recognized Indian orthopedic surgeon and joint replacement expert, trained in computer-assisted navigation knee replacement surgery and robotic-assisted knee replacement surgery with more than 2 decades of practice in Mumbai. His quest for learning and refining his surgical skills and knowledge has taken him across the globe, and he has completed several fellowships under world-renowned orthopedic institutions and acclaimed surgeons from across the globe, mostly Europe and US of A. He is currently the director and head Department of Orthopedics and Joint Replacement at Bone and Joint 360 Surana Group of Hospitals, a NABH accredited chain of multi-speciality hospitals in Mumbai, Malad, Chembur, Navi, Mumbai, and in India. He is one of the first surgeons in western suburban Mumbai to introduce fully automatic robotic arm technology for patients looking for a robotic joint replacement surgery, and is a part of team RoboDocs at Criticare Asia Group of Hospitals, Mumbai. Dr. Shetty's Bone and Joint 360 Center is recognized for joint preservation techniques and also as a center of excellence for CR knee replacement surgery and Center of Excellence for Specially Coated Opulent Gold Knee Replacement Surgery. Over the years, he has made sustained efforts to increase the awareness of arthritis amongst the people through various forums and has been instrumental in creating various platforms to fight against arthritis and also initiated various drives to educate and increase the acceptance of joint replacement surgery in India. Last year, he started India's first women's arthritis clinic for women and all ages suffering from arthritis. That's a really commendable thing that you're doing there, Doctor. Welcome to MediCircle. How are you, sir? Thank you, Aparajita. Thanks a lot for inviting me. Thanks to you and MediCircle both. I hope you're doing well. Thank you. I am. Thank you so much. और जल्दी से इंटरव्यू पे आते हैं और बात आज हम लोग गठिया की जब करने वाले हैं तो सर डॉक्टर संतोष, मेरा पहला आपसे प्रश्न रहेगा कि गठिया किस किस टाइप की होती है, मतलब किस प्रकार की होती हैं? जो गठियावात जो हम बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कॉमनली आर्थराइटिस बोलते हैं, one of the most commonest problem in India right now. You will be surprised to know, Aparajita, that more than 180 million people in India are suffering with arthritis. And not only this, by 2040, we will have more than 78.4 million people suffering from arthritis. Let me share one more information. Huge number. Absolutely. Right. And let me share one more information. In fact, arthritis के जो incidence है is more than AIDS, cancer, and all other diseases put together. So I am really grateful to MediCircle and you that you're creating an awareness on arthritis. So let me first of all thank you for that. Now, broadly, when we speak about arthritis, लोगों को दो चीज जो पता है वो है osteoarthritis and rheumatoid arthritis. तो अगर सिंपल लैंग्वेज में मुझे बताना है तो osteoarthritis वो बीमारी है जो उम्र के साथ आती है और हमारे जो जॉइंट की कार्टिलेज है उसको खराब करती है. बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो हमें या तो हेरिडेटरी आ सकता है या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आ सकता है और वो हमारे जॉइंट को खराब करना शुरू कर देता है. सो ऑस्टियोआर्थराइटिस नॉर्मली एल्डरली एज ग्रुप में पाया जाता है, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको हम वात की बीमारी बोलते हैं वो कोई भी एज ग्रुप में बच्चे से लेके बूढ़े तक पाया जा सकता है.
अब ऑस्टियोआर्थराइटिस तो सिंपल एक एक्सरे से पकड़ा जा सकता है, बट रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए काफी सारे ब्लड टेस्ट लगते हैं। अब चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, पेशेंट की जो मेन तकलीफ होती है वो है जॉइंट पेन, और उसी सिलसिले में आज हम मिले हैं उसी को डिस्कस करने के लिए। जी सो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज फॉर एल्डरली पेशेंट्स एंड रोमेटॉइड आर्थराइटिस कैन बी इन एनी एज ग्रुप। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमनली पाया जाता है नी जॉइंट में, बिकॉज नी जॉइंट हमारा वेट बेयरिंग जॉइंट है और हिप जॉइंट सेकंड कॉमनेस्ट वेट बेयरिंग जॉइंट है। आई एम श्योर आज आप काफी भागम दौड़ी किए होंगे, यहाँ जी से वहां गए होंगे, स्टेयरकेस लिए होंगे आपने, तो जी आपको पता है कि पूरे दिनचर्या में हम कितनी बार हमारे घुटने का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही जब हम घुटने का इस्तेमाल ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स करते हैं तो हमारा घुटना अंदर से घिसना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल वेयर एंड टेयर, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब अगर ये सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ये तो नॉर्मल वेयर एंड टेयर है, बट अगर आपको वात की बीमारी है और ब्लड में कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपकी जॉइंट डैमेज हो रही है, सिम्टम्स तो सेम रहेगा आपको, बट यहां पर ट्रीटमेंट थोड़ा डिफर करेगा, बिकॉज आपको एक रोमेटोलॉजिस्ट की भी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होगी, बिकॉज रोमेटॉइड आर्थराइटिस सिर्फ नी जॉइंट में नहीं होगा, आपके शरीर के हर एक जॉइंट में होगा, स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स जैसे हाथों की जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, यानी आपको हर एक जॉइंट में तकलीफ होगा। और मॉर्निंग में आपको स्टिफनेस जैसे एक आकार जैसे फीलिंग होगी कि जॉइंट स्टिफ है। तो दो प्रकार के पेशेंट आते हैं हमारे पास, एक जिनमें सिर्फ एक जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है और दूसरे जिसमें मल्टीपल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है। So in brief, this is what all arthritis is all about, and it can be found in any age group, unfortunately. Since we are here, let me give you one more information that in India today, every house has got a patient which has got joint pain in some form or the other. And in every individual, more than 70, every third patient has got arthritis. That's a shocking news for all the patients who are listening to this, कि अगर आप 70 से ऊपर के एज ग्रुप में हो तो संभावना ये है कि हर एक इंसान, 3 में से 1 इंसान को आर्थराइटिस और जॉइंट पेन की तकलीफ होगी। एंड बिलीव मी डॉक्टर, लिसनिंग टू ऑल दिस स्टैटिस्टिक्स और आपने जितने भी ये नंबर आंकड़े कुछ हमसे शेयर किए हैं, इनकी बात करने के बावजूद भी हमने देखा है कि हर परिवार में अगर हम बातचीत करते हैं तो मैक्सिमम महिलाओं को, वृद्ध लोगों को, सभी नॉर्मली ये कंप्लेन करते हैं कि जॉइंट्स में या घुटनों में दर्द उनको हो रहा होता है। तो इवन नॉट नोइंग कि अर्थराइटिस या गठिया एक्चुअली उनको सेट इन कर चुका है कि नहीं, दे आर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट दीज पेन्स। तो सर अगला प्रश्न यही है कि गठिया के लिए कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस उपलब्ध हैं? Yeah, thank you. That is the precise reason why women's arthritic clinic was started. Basically जो पाया गया है कि women are known to sacrifice, they are known to actually suffer and not to bring it out कि वो exactly क्या suffer कर रहे हैं। And arthritis का incidence सबसे ज्यादा women's में ही है। Every 5 male के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे, then there is every 5 में every 1 woman will be having an arthritis. That common is the incidence amongst women. बट सिर्फ ये होता है कि वुमेन इसको सामने आके बताते नहीं है, वो अपना जांच पड़ताल नहीं करवाते हैं और चुपचाप इसको सहन करते हैं और अलग अलग लेबल के अंदर डाल देते हैं। शायद आज काम ज्यादा हो गया, शायद आज मैंने वजन ज्यादा उठा लिया, शायद आज मैंने प्रॉपर डाइट नहीं लिया। तो ऐसे वेरियस डिनायल मोड के वजह से वो आगे आके अपना ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। सो आर्थराइटिस So में true. अर्ली सिम्टम्स अगर घर पे बैठे बैठे लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया और अगर राइट टाइम पे आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने अप्रोच किया तो डेफिनेटली आर्थराइटिस कैन बी ट्रीटेड एट एन अर्ली एज। एंड आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अगर हम आर्थराइटिस को अर्ली स्टेजेस में हमने पकड़ लिया तो आर्थराइटिस को हम काफी हद तक सर्जरी तक पहुंचने से रोक सकते हैं। सबसे बड़ा फियर अगर आज है जिसके वजह से महिलाएं घर से बाहर आके डॉक्टर्स को नहीं मिल रहे हैं, तो उनके मन में एक डर है कि शायद हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमें ऐसे प्रोसीजर बताएंगे शायद जिसमें खर्चा ज्यादा हो, घर में वो अपने आप को
कंट्रीब्यूट ना कर पाए और रेस्ट लेने की जरूरत पड़े और शायद सर्जरी की जरूरत पड़े। इन्हीं वजहों से महिलाएं हमारे पास आती नहीं है राइट टाइम पे, और जब तक वो हमारे पास आ जाते हैं अनफॉर्चुनेटली उनका जॉइंट काफी हद तक डैमेज हो गया होता है। सो मैं ये बताना चाहूंगा जो दर्शक ये शो देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि अगर आपको जॉइंट पेन है और 3 हफ्ते से ज्यादा ये जॉइंट पेन रह रहा है और आपने घरेलू नुस्खा या आपके फैमिली डॉक्टर से कोई मेडिसिन लिया है बट उसके बावजूद ये जॉइंट पेन नहीं जा रहा है, तो आपको एक स्पेशलिस्ट जिसको हम ऑर्थोपेडिक सर्जन बोलते हैं उनसे एक मुलाकात करना जरूरी बन जाता है। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। और इसमें आपने एक बात कही थी कि आगे के ट्रीटमेंट या रिप्लेसमेंट जो किया जाता है नी का, कुछ ऐसी बातें आपने मेंशन की। डॉक्टर, तो मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि क्या गठिया समय के साथ वर्स होता है, कंडीशन डिटोरिएट होती है? यस, इसीलिए बहुत जरूरी है कि पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज में आए। सो बेसिकली अपरिचिता, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताना चाहता हूँ, आप आपके घर का मेंटेनेंस करते हो। अगर आप घर का मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करोगे तो आपका घर अच्छा रहेगा। जी। बट अगर आपने उसके मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दिया तो हम्म। क्या होगा, आपके सामने एक बहुत ही बड़ा खर्चा आके खड़ा हो जाएगा। वैसे सही ही बात। हमारा शरीर भी हमारे से मेंटेनेंस मांगता है, और वो शरीर का अगर आप मेंटेनेंस वक्त से हर बार करोगे तो फिर आपको मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेंटेनेंस में बहुत ही सिंपल चीज है, बेसिकली आपको आपका लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है। लाइफस्टाइल क्या होता है, अगर हम सही चीज से खाते नहीं है तो हम ओबिसिटी की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है हमारा वेट। अगर हमने वेट को कंट्रोल में रखा तो हमारा बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, कम रहेगा, जॉइंट के ऊपर कम लोड रहेगा और जॉइंट कम घिसेगा। दैट इज प्राइमरली फर्स्ट थिंग। ये हमारे शरीर की तरफ हमारा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड है, आपका वेट कम है बट आप आपके जॉइंट्स का अब्यूज कर रहे हो। व्हाट डू यू मीन बाय अब्यूज? आपके जॉइंट का भी एक लाइफ होता है, उसका भी एक इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। बट अगर आपके लाइफ में ऐसे सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व है जहां पर जॉइंट के ऊपर काफी सारे स्ट्रेस फोर्सेस आ रहे हैं, सो ऑब्वियसली उन स्ट्रेस फोर्सेस के वजह से वो जॉइंट का नॉर्मल वेर एंड टेयर शुरू हो जाएगा। अब एक बार ये वेर एंड टेयर शुरू होता है तो ये वक्त के साथ बढ़ते जाता है। अब अगर वो वेर एंड टेयर को रोकना है तो सिंपल सा चीज करना है, अगेन वंस अगेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जहां हमें ऐसे एक्टिविटीज को तुरंत बंद कर देने चाहिए जो हमारे जॉइंट्स को स्ट्रेस दे रहे हैं और जॉइंट्स को धीरे धीरे खराब कर रहे हैं। सर, मैं चाहूंगी कि आप ऑब्वियस इसको एक्सप्लेन करें कि ये कौन से कुछ खास एक्टिविटीज हैं, इफ एट ऑल यू कैन। जी। यस। सो आजकल आपने देखा रहेगा काफी जुम्बा क्लासेस के चल रहे हैं, लोग यंग लोग जुम्बा क्लासेस जा रहे हैं वेट लॉस करने के लिए या एक्टिव रहने के लिए। नाउ व्हेन यू आर इन जुम्बा क्लास, व्हाट इज हैपनिंग इज इफ यू आर हैव अ प्रॉपर फिजिकल ट्रेनर जो आपको ट्रेन कर रहे हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम विद डूइंग ऑल दीज थिंग्स। बट जस्ट इमेजिन आप डाइटिंग कर रहे हो, आपको विटामिन डी3 डेफिशिएंसी है, आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है, आप मैलनरिश्ड हो, आपके बोन्स कमजोर है, अब उसके ऊपर आप जंपिंग हॉपिंग कंटिन्यूअसली कर रहे हो, तो क्या होगा उस जॉइंट के साथ? वो जॉइंट वो स्ट्रेस फोर्स नहीं ले पाएगा। अब इसमें मल्टीपल फैक्टर्स है। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अगेंस्ट दोस क्लासेस। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इफ यू हैव डेफिशिएंसीज और आप वो चीज कर रहे हो तो स्ट्रेस फोर्सेस आप बढ़ा रहे हो। सो आपको अगर कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, जैसे कि एथलीट, मेनी पीपल कम एंड से सर एथलीट तो सब कुछ करते हैं, आप हमें बोलते ये सब मत करो। एथलीट का बॉडी और हमारे बॉडी में डिफरेंस है। एथलीट के बॉडी में देखा जाता है कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, उनका बीएमआई कम है, उनका बॉडी मेंटेन्ड है, तो वो कितने भी स्ट्रेस फोर्सेस डाले उनके जॉइंट के ऊपर, वो जॉइंट को उस हिसाब से ट्रेन किया गया है वो स्ट्रेस फोर्सेस लेने के लिए। नाउ इमेजिन अ हाउसवाइफ who is not an athlete, who has put on weight. Now suddenly she decides कि मुझे अभी weight कम करना है. So first thing what they do is dieting. Now they go in for dieting, they start losing their calcium, they start losing their vitamin D3. अब उनके bones हो चुके हैं weak. अब उस पे जा रहे हैं और वो जिम ज्वाइन कर लेते हैं या ऐसे कोई क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। जी। ऑलरेडी बोन्स वीक है, वहां एक्सर्शन आ चुका है अभी। अब ये एक्सर्शन का जो परिणाम आएगा जॉइंट के ऊपर वो ये है कि जॉइंट धीरे धीरे उस स्ट्रेस के वजह से
घिसना शुरू हो जाएगा। अभी इसी को हम बोलते हैं अर्ली आर्थराइटिस। वो अर्ली आर्थराइटिस का सिम्टम्स बॉडी आपको पहले ही दे देगा। अब अगर आपने इग्नोर किया वो सिम्टम्स को, तो आगे चल के ऐसा वक्त आएगा कि आर्थराइटिस आपके हाथ से निकल जाएगा और इसका मैनेजमेंट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। जो सिर्फ एक मेडिसिन से या फिजियोथेरेपी से काम बन सकता था, हो सकता है कि वो अब ऐसा हो जाए कि ऐसे स्टेज में एडवांस हो जाए जहां कोई प्रकार की सर्जरी की जरूरत हो। सो स्ट्रेस फोर्सेस आर वेट, स्क्वाटिंग, फ्लोर एक्टिविटीज एंड जिम में स्पेशली थ्रेडमिल। These are excessive stress forces on the knee joint. अगर आपने इस स्ट्रेस फोर्सेस को कम किया तो आपका जॉइंट पे कोई ज्यादती नहीं होगी और आपका जॉइंट अच्छे से मेंटेन रहेगा। ऑलराइट डॉक्टर, आपने अभी अपने पिछले एक उत्तर में कुछ भय की बात की थी। बहुत सारे लोगों को आपने कुछ ऐसी शंकाएं होती हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं रिलेटेड टू गठिया। तो मैं चाहूंगी कि ऐसे कुछ खास फियर जो पेशेंट्स को, खासकर उन्हें जिनको बहुत ज्यादा जॉइंट पेन होता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें रोकती हैं किसी डॉक्टर के पास जाने से? मैं चाहूंगी आप ये शेयर करें। या सी बेसिकली जो हमने पाया है हमारे पेशेंट से जब हमारी इंटरेक्शन होती है, जब हम उनको पूछते हैं कि आप पहले क्यों नहीं मिले हमें, सो उनका फर्स्ट इंटरेक्शन ये रहता है कि डॉक्टर हमें तो लगा कि अगर जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन सिर्फ सर्जरी है। सो फर्स्ट चीज मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि नहीं, सर्जरी इज नॉट द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, सर्जरी इज द लास्ट रिजॉर्ट। आप अगर डॉक्टर को पहले लोगे तो आपका जॉइंट को मेंटेन रखने के लिए देयर आर इनफ मेडिकेशंस व्हिच आर अवेलेबल। बट द फियर, सी लोग है ना बहुत ही इजीली होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आयुर्वेदिक के पास चले जाते हैं, नेचुरोपैथी करा लेते हैं, बट एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलने से उन्हें परहेज है। क्योंकि एक ऐसा उनके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हुआ है कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर यानी कोई ना कोई सर्जरी। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग के आगे ऑर्थोपेडिक सर्जन भले लगा हो, बट हम भी मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि लोगों को ये समझ में आए कि अगर वो जल्दी डॉक्टर के पास जाए तो वो डॉक्टर भी उनका मेडिसिन से मदद कर सकते हैं। बट अगर मेरे पास कोई इंसान ऐसे स्टेज में आ गया है जहां जॉइंट कंप्लीटली डैमेज हो चुका है और वो व्हीलचेयर पे आ चुके हैं, अब आप फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन से अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको व्हीलचेयर से बाहर निकाले और वापस से आपको चलता फिरता कर दे बिना कोई सर्जरी के ऑप्शन दिए हुए, दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो वंस अगेन दैट इज द एक्सपेक्टिंग अ मिरेकल। बेचारे डॉक्टर के मिरेकल। पास भी चारा नहीं है, आप लास्ट स्टेज पे हो तो। जी। सो मैं एग्जैक्टली यही बताना चाहता हूं कि आर्थराइटिस के टोटल 4 स्टेजेस है। First 3 stages does not require any surgery. It is only the 4th stage, unfortunately, which requires the surgery. Many a times people ask me, ki, how do we identify whether we require surgery or we don't require surgery? So, आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूंगा सिंपल सा चीज, अगर आपका पैर बेंड हो चुका है, अगर आपको चलने के लिए कोई भी टाइप का सपोर्ट की जरूरत है, अगर आपके जॉइंट के मूवमेंट्स कम हो चुके हैं और पेन किलर के सिवाय आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है, देन एंड देन ओनली मोस्ट प्रोबब्ली आर लुकिंग एट अ सर्जरी। क्योंकि सिंपल सा चीज है, अगर आपका पैर बेंड हो चुका है, नो मैटर आप कोई भी दवाई लो, कोई भी इंजेक्शन लो, बेंड पैर तो सीधा नहीं हो सकता। सही बात। अगर आप छड़ी के साथ चल रहे हो, वॉकर के साथ चल रहे हो, या आप चल ही नहीं पा रहे हो, जी। सो देन देयर इज अ गुड रीजन कि आपका जॉइंट कंप्लीटली डैमेज हो चुका है और वो आपका लोड नहीं ले पा रहा है। और अगर आपके जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बचा है और आपको पेन किलर्स लेने की जरूरत पड़ रही है, दीज आर द पेशेंट्स हु कैन एक्चुअली अज्यूम बिफोर मीटिंग द डॉक्टर कि शायद उनको सर्जरी की जरूरत है। बट ऑल अदर पेशेंट्स जिनको सिर्फ जॉइंट पेन है और वो अपना डे टू डे एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं, 99% the probability is that you don't require a surgery. So this is the way where you can identify घर पे बैठे बैठे कि whether you are in the first 3 stages or you are in the last stage. राइट।
बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है और मुझे लगता है कि सभी दर्शकों को एक क्लैरिटी आ गई होगी इस अर्थराइटिस और गठिया के विषय में। सर, गठिया क्या कभी भी होने के बाद उसका पेशेंट कभी भी अपनी पुरानी नॉर्मल स्थिति में जा सकता है? क्या गठिया से रिड हो सकता है? आ, मैं इस प्रश्न को दो तरीके से डिवाइड करूंगा। गठिया के साथ है ना, अपन दो चीज इन्वॉल्व है, एक है दर्द और एक मोबिलिटी। तो दो चीज आके बताते हैं, डॉक्टर साहब हमें बहुत दुख रहा है, डॉक्टर साहब हम चल नहीं पा रहे हैं। सो ये जो पेन है ये इवेंचुअली उनके मोबिलिटी को जाके अफेक्ट करता है और उनका चलना फिरना कम कर देता है आर्थराइटिस में। अब अगर आपको सिर्फ दर्द है तो डेफिनेटली वो पेन रिलीफ तो आपको विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन मिल सकता है। और काफी हद तक जो आपका मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो चुका है वो भी आपको विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन आपका मोबिलिटी भी आपको वापस से दिया जा सकता है। सो लोगों के मन में जो फियर है वो एक्चुअली मोबिलिटी को लेके है। दर्द सही तो बात है। लोग सहन कर सह चुके हैं और लेते हर हैं। तरह का दर्द सहन कर लेते हैं, बट नॉर्मली जब आप चल फिर नहीं पाते हो, दैट इज वेयर द एरिया ऑफ कंसर्न कम्स इन, नॉट ओनली फॉर द पेशेंट बट ऑल्सो फॉर द केयर टेकर्स एंड द रिलेटिव्स। घर पे अगर कोई भी इंसान नहीं चल पा रहा है तो वो इनडायरेक्टली क्या हो जाता है, दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाता है। और ऐसे ही टाइम होता है जब पेशेंट को या तो पेशेंट खुद या उनके रिलेटिव्स हमारे पास लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब इनका चलना फिरना अब बंद हो चुका है, अब आप जरा देखिए क्या कर सकते हो। सो आपका जो क्वेश्चन है कि क्या ये रिवर्स किया जा सकता है, अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज नो, ऑलराइट। बिकॉज आर्थराइटिस इज अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। यानी एक बार अगर आपका जॉइंट घिसना शुरू हो गया तो वो वक्त के साथ सिर्फ घिसते जाएगा, ना तो वो थमता है। दैट इज द वर्स्ट थिंग, साइंस आज तक आर्थराइटिस को ना तो रोक पाया है ना तो रिवर्स कर पाया है। साइंस सिर्फ आर्थराइटिस का प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर पाया है। सो जब कोई पेशेंट मेडिकल इंटरवेंशन के लिए हमारे पास आते हैं, हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, उनके आर्थराइटिस के जो प्रोग्रेशन है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। तो जो लोग हमें मिलने आते हैं उनका बेनिफिट ये है कि उनका आर्थराइटिस का प्रोग्रेशन स्लो डाउन होगा, ना तो रोक पाएंगे हम ना रिवर्स कर पाएंगे। बट जो लोग हमें मिलने नहीं आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, सो उनका आर्थराइटिस बहुत ही फास्ट तरीके से प्रोग्रेस होगा। एंड दैट इज डेंजरस फॉर अ पर्सन हु सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस, बिकॉज देन दे आर डेफिनेटली लुकिंग एट अ सर्जरी। Right. So, Dr. Shetty, before I let you go, please share something about new technological advancements in this domain. इस फील्ड में कुछ भी ऐसा कुछ नया हो रहा है तो मैं चाहूंगी जानने से पहले बहुत ब्रीफली अगर आप कुछ दो शब्द कहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। श्योर। सी लोग जानना चाहते हैं कि आर्थराइटिस के क्या क्या ट्रीटमेंट्स है बेसिकली। सो फर्स्ट ट्रीटमेंट तो मेडिसिन है, जैसे मैंने आपको कहा। सेकेंड ट्रीटमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। उस इंजेक्शन में स्टेम सेल थेरेपी लोगों ने सुना होगा, आजकल बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं स्टेम सेल थेरेपी। दैट इज ऑल्सो अ ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं नॉन इन्वेजिव, यानी कुछ नहीं करना है, नॉन इन्वेजिव थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी। अब लास्ट एंड फाइनल रिजॉर्ट जैसे मैंने आपको बताया था इस सर्जरी, वही लोगों को जरूरत है जिनमें अभी और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और सर्जरी में टेक्नोलॉजी अभी इतना एडवांस हो चुका है कि रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट भी आ चुका है इस फील्ड में। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट बेसिकली एक ऐसा रिप्लेसमेंट है जिसमें सर्जन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मदद से पेशेंट को बहुत ही जल्दी रिकवर करवाते हैं। अगर पहले नॉर्मल सर्जरी में 5 to 7 days अगर पेशेंट हॉस्पिटल में रहते थे, नाउ द पेशेंट कैन बी इन द हॉस्पिटल फॉर ओनली 24 to 48 hours in robotic knee replacement. Within 2 to 4 hours after surgery, the patient can start walking and the recovery is Wow. painless, complete painless recovery hai. And this is what has changed the way world is treating arthritis today. So globally, robotic knee replacement has taken over only and only because it is giving the most advanced and the best results for patients who are suffering from arthritis. So एक अगर संक्षेप में मैं अगर टेक होम मैसेज एंड में अगर लोगों को देना चाहूंगा तो मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूंगा कि आर्थराइटिस बहुत कॉमन है, उसको लाइटली मत लीजिए। विद टाइम आर्थराइटिस के इंसिडेंट्स बढ़ने वाले हैं।
सिंपल चीज करना है आपको, कोई भी डॉक्टर को आपको मिलना है अगर आपको जॉइंट पेन है जो 3 हफ्ते से कम नहीं हो रहा है, लेट द डॉक्टर टेक अ कॉल. मेनी अ टाइम्स इट विल बी जस्ट सिंपल ब्लड टेस्ट और एक्सरे, जिससे आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी. आप अगर आपके जॉइंट को मेंटेन रखोगे और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिसिन लोगे, तो आपको जॉइंट में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. यस, वो पेन ओवर द पीरियड टाइम प्रोग्रेस होगा, रिवर्स नहीं होगा, थमेगा नहीं, बट आप अपना लाइफ एंजॉय कर सकते हो. बट अगर आपने सारे चीज नजरअंदाज कर दिए हैं और आप लास्ट रिजॉर्ट में पहुंच चुके हो जहां जॉइंट कंप्लीटली डैमेज हो गया है, तो भी यू डोंट हैव एनीथिंग कि आपको होप्स. अगर मैं वो लोगों को बताना चाहता हूं जिन्होंने होप्स छोड़ दिया है और शायद वो घर पे बैठे हैं ये सोच के कि हम फिर लाइफ में कभी नहीं चलने वाले, उनको मैं बताना चाहता हूं कि नो, अगर आपका पैर कितना भी बेंड हो, आप वॉकर ले रहे हो, आप स्टिक ले रहे हो या आप बेड रिडन हो, आपके नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन डेफिनेटली आपको वापस से चला सकते हैं. एंड दैट इज व्हाई ऑल द जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर देयर टू हेल्प पेशेंट्स जो नहीं चल पाते हैं, उनको एक नया जिंदगी, वापस से मोबिलिटी और पेन फ्री लाइफ डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम दे सकते हैं. So this is a take-home message for all the patients who are suffering from arthritis. Take care of your joints. We are there to help you. Obviously, MediCircle, all the informations. There are various platforms to gain information about arthritis, and there are joint replacement surgeons across India and across world to help you for that. एंड नाउ दैट वेरी ब्यूटिफुली आपने आज हमारा पूरा इंटरव्यू आपने एक संक्षेप में सब कुछ बता दिया है. और इस बहुत ही खूबसूरत से पॉजिटिव नोट पर मैं डॉक्टर शेट्टी आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप हमारे इस शो में आए और अपना इतना अमूल्य समय ही दिया, हमें इतनी सारी अपनी काम की इंसाइट्स हमारे साथ शेयर की हैं. तो मैं मेडिसर्कल की पूरी टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ. इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे. थैंक यू सो मच सर. हैव अ गुड डे. थैंक यू.